chapter number 3 of module 3, right? Chapter number 3 is one thing I would like to tell you. Chapter number 3 is the most important chapter of entire module 3, right? Just make sure about this thing. If the most important chapter अगर कोई है module 3 का तो वो है chapter number 3, ठीक है? Followed by chapter number 4 and then followed by chapter number 7. These are the 3 important chapters, but most important chapter is the chapter number 3. When we say about most important chapter, it means you will be getting a lot of the question from this particular chapter, right? Hanji. So let's start with our chapter number 3. This talks about the interview theory and application. So this is the situation. There may be a situation when we have to interview a persons. Like we discussed in the last class, we have to interview the cashier, we have to interview the security guard, or we have to interview the chai wala. Okay? So whenever we are taking this particular interview, how that interview is different from the normal interview. Make sure this is not a job interview where you have invited a person to ask, okay, start, tell me something about yourself. वही घिसा पिटा क्वेश्चन, ठीक है, जो आप रट के जाते हो वहां पे blah 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 3 मिनट बोलते रहते हो, right? He is least interested in about your family, about your all these things. वो सिर्फ आपको 2-3 मिनट का टाइम ले रहा होता आपका रिज्यूम पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ के नहीं आया हुआ होता, right? So this is not the normal interview. This is a investigative interview. Why it is different from a normal interview? In the normal interview you had अपॉर्चुनिटी कि अगर आपका इंटरव्यू में आपका ध्यान भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाएगा दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लेंगे. बट हियर यू आर इंटरव्यूइंग ए सस्पेक्ट और अ पर्सन हु इज कैरिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन. तो आपको जो इंफॉर्मेशन ये दे सकता है वो ये ही दे सकता है, और कोई और इंटरव्यू ही आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता. नंबर 1, राइट. नंबर 2, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू इज ऑलवेज द बेस्ट वन, बिकॉज उस समय पर्सन normally used to be unprepared, right? While जब आप उसको दोबारा से बुलाओगे 2 दिन 4 दिन के बाद कि हाँ जी 2-4 क्वेश्चन रह गए थे, आना जरा, तो अब उसको पता है how the interview is going to be happen and he is well prepared for all of the things and he may be using various kind of the manipulators also. Clear? So the first time interview is very very important. So as interview, this investigation interview is the one incidence which is specifically carried out by the fraud examiners only. You will not believe, in some of the organizations the company has their forensics and the investigation department in their company itself, but for particular interview they hire external certified fraud examiner also, because certified fraud examiner will be able to understand, will be able to cater and to take care of all of the elements which a investigator should take care while they are conducting the interview. जबकि एक नॉर्मल इंटरव्यू, नॉर्मल इंटरनल ऑडिटर, नॉर्मल लीगल पर्सन आपकी कंपनी का, उनको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं हो सकती, इसलिए वो मेस बना सकता है पूरे इंटरव्यू सीन को. और जो इंफॉर्मेशन एक इंटरव्यू से हम ले सकते थे, शायद ही मे नॉट बी इन पोजीशन टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, राइट? So that's why the interview technique is the very very important. We'll be understanding in details in the chapter number 3 followed by chapter number 4. So start करते हैं इंटरव्यू की डेफिनेशन की. इंटरव्यू क्या होता है? It is a set of questions and answer. We know it is a question and answer session designed to elicit information. Our intent is to have this of this interview is to elicit. Elicit means obtain करना, right? To obtain certain kind of the information. हम यहाँ पर उसकी knowledge check करने के लिए नहीं बैठे हैं. Which we do in a normal job interview, right? Here our intent is to obtain certain kind of the information. So the very important point here is that what is the objective of this interview is to elicit information, to obtain certain kind of the information. It is not necessary that we are not aware about the situation. We may have that knowledge of that information, but we may be reconfirming from him, right? So elicit consists of obtaining and validating, right? It differs from an ordinary conversation on that an interview is structured, not free from and is designed for a purpose. 3 important lines, 3 important points यहाँ पर दिए हुए हैं. एक क्वेश्चन इन तीनों में से बन के आएगा. वो क्या? ये इंटरव्यू क्या है? नंबर 1, it is a structured interview. फ्री नहीं है, जैसा दिल करे वैसा चला लो, ऐसा नहीं है. You have to
pre-work. You have to do lot of homework before initiating that interview. क्या क्या homework करना अभी हम पढ़ेंगे आगे. Not free from and is designed for a purpose. Not free from purpose. तो लाइन कैसे कंप्लीट हो रही है? Not free from purpose. इस इंटरव्यू का कोई पर्पस है. ऐसा नहीं कि जनरल आप इंटरव्यू ले रहे, किसी के पास गए, हाँ जी सर बताइए कैसा लगा इस कंपनी में आके आपको. नहीं, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरव्यू, राइट. इट इज दिस पर्पस is not free from, sorry, this interview is not free from purpose and is designed for purpose, right. So ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर. आगे चलते हैं. जब भी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी शुड टेक इन माइंड. सबसे पहले द फ्रॉड एग्जामिनर मस्ट फर्स्ट डेवलप ए प्लान. कुछ होमवर्क करना चाहिए. क्या वो होमवर्क हो सकता है? नंबर 1, नोट डाउन द इंटरव्यूज ऑब्जेक्टिव. करना क्या चाहते हो? संतोषी, जब हम कैशियर का इंटरव्यू लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है. जब हम सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कुछ और है. दो वी वुड लाइक टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, एलिसिट द इंफॉर्मेशन, बट क्या इंफॉर्मेशन एलिसिट करनी है वो वेरी करती है दोनों से, राइट. हेंस इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड दैट व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू. रिव्यूइंग द केस फाइल टू एंश्योर दैट इट डजंट कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट हैज ओवरलुक्ड. सबसे पहले अपनी जो अब तक का काम हुआ है, प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ द फाइल्स एंड मेक श्योर you have note down all of the questions which you need to be asked in the interview. कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया, what will happen? You will be inviting him again, and at that point of time he may be forwarding manipulated information, right? So make sure कि कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए. Determine what information witness might offer and how to obtain it. ये भी ध्यान रखना. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम सपोज टू गेट फ्रॉम इट एंड हाउ टू ऑब्टेन इट. और इंफॉर्मेशन लेने के बहुत सारे तरीके अभी हम पढ़ेंगे. कौन से वाले मेथड से इंफॉर्मेशन निकलवानी है ये भी हमें पता होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, सेलेक्ट ए कंफर्टेबल एंड सिक्योर वेन्यू. वेन्यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल. इट शुड बी सिक्योर फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, राइट. पुलिस स्टेशन में ले जाके इंटरव्यू लोगे तो वो पर्सन आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा. उसके घर जाके भी इंटरव्यू नहीं लेना तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं होगे. ठीक है. सो इट्स बेटर टू हैव ए कंफर्टेबल एंड सिक्योर वेन्यू, प्रेफरेबली एट द ऑफिस प्लेस ओनली, राइट. एक मीटिंग रूम में होना चाहिए. मीटिंग रूम क्लोज होना चाहिए. क्लोज्ड, लॉक्ड नहीं बोला है तनिषा, ठीक है. क्लोज्ड होना चाहिए. लॉक्ड होगा तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, राइट. तो क्लोज होना चाहिए. इंफॉर्मेशन आप उसको लगना चाहिए कि कोई बाहर से सुन नहीं रहा है, ठीक है. सिक्योर होना चाहिए. सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टीम एज इंटरव्यूअर. अब इंटरव्यू के समय हु विल बी पार्टिसिपेटिंग, दैट आल्सो यू हैव टू बी केयरफुल. बहुत सारे लोग बिठा के इंटरव्यू लोगे तो वो ही मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वो ज्यादा लोगों के सामने नहीं बोल सकते. एक आध के सामने फिर भी कन्विंस कर सकते हो दैट बता दो यार कोई बात नहीं. Formulating a brief outline of the key point to discuss during the interview. Deciding which evidentiary document to be obtained from the subject. इंटरव्यू के समय क्या क्या हमें उनसे डॉक्यूमेंट मांगने हैं ये भी आप पहले से थोड़ा डिटरमाइन करके चलना. Research relevant culture norms specifically prior to conducting the interview with the subject based in the foreign jurisdiction. तो ध्यान रखना है, you may required to conduct the interview at the various jurisdictions. Parties involved, one may be at Dubai, another may be at US, third may be at UK, fourth may be at Singapore and fifth may be at India. So हर किसी की cultural variances होते हैं that you have to be careful, right? किससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, उस jurisdiction की culture क्या है, तो culture से भी थोड़ा सा रूबरू होके जाना है. Clear? Understood? हाँ जी. नेक्स्ट इज द सक्सेसफुल इंटरव्यू. सक्सेसफुल इंटरव्यू होने के लिए देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, वेरी इजी पॉइंट्स, दो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, राइट. यू विल बी गेटिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो. You will be getting a question from successful interview also. So all of these headings carries one question from each point, right? But बड़ा easy है. Successful interview के लिए number 1, it should be sufficient length and depth. चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई नहीं, ठीक है. Length
कितना लंबा इंटरव्यू होना चाहिए, कितनी डेप्थ तक आपको जाना है, दिस शुड बी सफिशिएंट। सफिशिएंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, वेरी फ्रॉम केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है ना। गैदर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कंडक्ट एज सून एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द इवेंट इन क्वेश्चन। कल भी हमने बात करी थी, इवेंट इन क्वेश्चन, द मोमेंट द इवेंट हैज हैपेंड वी आर सपोज्ड टू कंडक्ट द इंटरव्यू एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। इट डजंट मीन इमीडिएटली, ठीक है, इट डजंट मीन इमीडिएटली बट एज क्लोज एज पॉसिबल, क्योंकि व्हाई द इंटरव्यूई मे फॉरगेट, इंटरव्यू may prepared for the manipulation also, so hence it is better to conduct it as close as possible. Objective in scope, इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फालतू की बातें वहां पर नहीं होनी चाहिए. Maintain eye contact as much as possible during the interview. आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखना है आपको रखना है, वो रख रहा है नहीं रख रहा है वो हम देखेंगे, राइट, क्लियर. Do not prepare a list of predetermined question to ask in the question subject. Instead, let the interview flow freely. ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं. अभी हमने पीछे पढ़ा, we should have a list of the question which we are supposed to ask. It doesn't mean you will be starting with question number 1, then going to 2, then 3, then 4, then 5, then 6. No. Let the interview to go freely, but make sure your all of the questions have been answered. Clear? एक के बाद 8 पे भी जाना पड़ सकता है, 8 के बाद 3 पे आना पड़ सकता है, समथिंग लाइक दैट. जैसे ऐसी बातें कन्वर्सेशन के वे में इसको रखिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इन ए क्वेश्चन फॉर्मेट, राइट. ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, ठीक है जी. ओनली क्वेश्चन वन पर्सन एट ए टाइम. अगर आप एक से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेक श्योर आप एक समय एक ही पर्सन से क्वेश्चन पूछो, बेटर रहेगा, ही विल बी एबल टू आंसर, ठीक है ना. हाँ जी. कंडक्ट इंटरव्यू अंडर द कंडीशंस ऑफ प्राइवेसी. क्लियर. इंटरव्यू जब भी होगा यू हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ द कंसीडरेशंस, ऑल ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्राइवेसी, बिकॉज प्राइवेसी नॉर्म्स आल्सो नीड्स टू बी adhered, राइट. These are the point. Best practices before the beginning of an interview. इंटरव्यू शुरू करते हैं तो क्या करना है? Make physical contact, ठीक है. Make physical contact means have a handshake, right, if possible, if allowed by that jurisdiction. Make physical contact with the person being interviewed by shaking hands to break down physical barriers. ठीक है, थोड़ा सा उसको अजीब ना लगे इसलिए फिर कर लीजिए. Describe the interview's purpose by using a transitional statement that provides a legitimate basis for the inquiry and explain how respondent fit into it. कैसे करेंगे? First of all, handshake करने के बाद, greet करने के बाद, we will be explaining in 1 or 2 liner, 5 liner that why you are here and what we are expecting from you. ठीक है कमल. इंटरव्यू को बुला के कैशियर को ये नहीं करना है, आपको पता है यहाँ चोरी और हमें पता आपने की है तो इसलिए आपको यहाँ बुलाया है, ऐसा नहीं करना है, राइट. So you have to use the polite words. You have to, because you are just about to start the interview, right? So you have to maintain that decorum. Seek continual agreement by attempting to phrase questions so they can answer yes, because it is always easier to answer yes than no. इतनी बड़ी बात आपको आज पता चल रही है, ये हमें अभी तक नहीं पता थी. किसी भी कन्वर्सेशन में, though it is very important for interview, but you know, whenever you are communicating with your seniors, your boss, your shareholders, your directors, if you need to ask a question, you should phrase your question that the expected answer of it is yes. क्लियर. सर आप ठीक हो ना? यस. सर आप बीमार हो? नो. तो कौन सा क्वेश्चन पूछना है? समझ गए? इस तरीके से, बिकॉज व्हाई इट इज ए साइकोलॉजिकल थिंग दैट इट इज ऑलवेज इजियर टू से यस रेदर देन नो. तो वी शुड रीफ्रेज आवर क्वेश्चन इन ए फॉर्मेट दैट द पर्सन हैज टू से यस. ठीक है ना? अंडरस्टूड. तो हमेशा ये ध्यान रखना है, यस क्वेश्चन, यस आंसर देना हर किसी के लिए इजी होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, स्पेशली इन इंटरव्यू जहां पर आप एक दूसरे को नहीं जानते हो. क्लियर. यस कोई भी फटाक से बोल देगा, तो हमें अपने क्वेश्चंस इसी तरीके से चेंज कर लेंगे. अगर जो जरूरत हुआ तो हम उसको रिवर्स कर लेंगे. डू नॉट इन्वेड पर्सनल स्पेस, मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 4 to 6 feet. You know about it.
दिस इज द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन टू पर्संस ड्यूरिंग इंटरव्यू. इट शुड बी 4 feet to 6 feet. उसके बिल्कुल पास में जाके नहीं बैठ जाना है. हाँ जी बताओ क्या हुआ था. वो कहेगा यार गर्दन तो छोड़ पहले. ऐसा नहीं करना है. और उसको इतनी दूर बिठा दिया, वो बार बार आपको बोल रहा पार्डन पार्डन. नहीं, मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 4 to 6 feet. अंडरस्टूड. सो रोशन, पेपर में क्या आएगा? इट इज आइडियल टू मेंटेन, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 4 feet as the ideal norms. True or false? क्या कह रहे हो? ट्रू. ट्रू. हाँ जी. और कोई है अपोजिशन में जो फॉल्स बोलता है? फॉल्स. फॉल्स. अरे साथ के साथ में आ गया यार. हाँ जी बताइए विशाल, व्हाई फॉल्स? इट इज नॉट कंपल्सरी ना. इट डिपेंड्स ऑन दी, मतलब आप किस रूम में बैठे हो, कैसा टेबल लगा है. सो 4 to 6 जैसा हम पढ़ रहे हैं, इट इज अप्रॉक्सीमेट. सो इट कुड बी अ छोटा मीटिंग रूम है तो 2 फीट 3 फीट भी हो सकता है. नहीं विशाल, देयर इज अ गैप इन अंडरस्टैंडिंग. इट शुड नॉट बी 2 to 3 feet. इट मींस आपने राइट वेन्यू सेलेक्ट नहीं किया है. राइट, you have to select the venue in such a way where you can maintain a distance to 4 to 6 feet. 4 to 6 is the ideal norm, Roshan, not 4. मैंने क्वेश्चन क्या था? It is always, क्वेश्चन मेरा यहां से था, always 4 होना जरूरी नहीं है. It may be 4.5, 5, 5.5 और 6. आइडियल की अगर हम बात करते हैं, right? So ideal is 4 to 6, not 4 always. Are you getting the trickness of the question? Right? 4 to 6 की बात हो रही है. 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो. 4 to 6 इज द बेस्ट आंसर. कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 4 feet, ऑप्शन नंबर बी 6 feet, ऑप्शन नंबर सी 4 to 6 feet, ऑप्शन नंबर डी none of the above. Then the correct answer will be 4 to 6 feet, option number C. Clear? Understood? And Vishal. If the question is only talking about 4 feet, then it becomes false, na? Obviously. अगर ओनली लिखा है तो फिर फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमने समझा क्या, 4 to 6 इज द आइडियल, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो विशाल, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन दैट यू हैव दी, वहां पर चेयर्स कम है, वहां पर भीड़ा रूम है. इट मींस आपने ऑलरेडी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किए, यू हैव नॉट सिलेक्टेड द प्रॉपर वेन्यू. राइट? सो ये गलत है कि आप 2 सीट पे 3 फुट 4 फुट के रूम के अंदर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, वेयर यू कैन जस्ट allow that distance of 2 feet. No, it's not right way, right?